Good evening. Good evening, sir. Is it audible? Hello. Yes, sir. Today we're going to learn perceptual process in an organizations. Huh. Now see, you know that yesterday we have discussed about the interpretations, about also we have discussed the perceptual process. Okay, now how in the organization the perceptual process go on. So you know that the perceptual process goes on based on experience, values, and apart from that, the expectations of the company. Not expectations. Employees are also having expectations, but maximum expectations are from the management, from their employees. They are expecting that the growth of the company. Okay. So this is how the process go on. Go on. So first, you know that based on the experience and value, uh, based on experience and value and expectations of a company, not only company about from the employees or also this will going to improve the overall growth process, or this will going to improve the overall what you can say the transactions, or you can say there is another term that is the turnover of the company. Okay, that is the perceptual process goes in this way only. Okay, first the employees or the managements need to have some experience. They always try to motivate the employees. They should motivate the employees. Not only that, they need to upgrade themselves. They need to upgrade the companies. They need to upgrade their employees. Okay, by many assigning development programs. And apart from that, if you based on this too, then there are only will be the expectations. You can expect something, but without feeding anything, without giving your 100% to the company, positive mindset in the company, then how can you expect 100%? So it's a very important process that every company follows this pattern, that before expectation, they need to do the task, they need to do the homework, they need to do the process. And what is the process? They need to have the expectations. Sorry, they need to have the, first of all, they need to have some experience in that. After having an experience, they need to have some values. They need to have some value. They need to create some values, moralities in the company, and then only you can expect that your employees will go and work for the organizations. Okay. Now, uh, managers in the company, what they used to do, they used to interpret, or they used to perceive the punctuality and commitment and reliability. This is another process from the manager point of view. From the manager point of view, मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझाऊं तो मैनेजर्स का एक्सपेक्टेशंस होता है कि कंपनी का जो एम्प्लॉयज है वो हमारा बात सुने, जो भी कमिटमेंट मैं करूं मैनेजमेंट के सामने, वो कमिटमेंट मैं उनको पूरा करके दूं, एंड तब जाके एक भरोसा, एक रिलायबिलिटी कंपनी में क्रिएट करता है और आगे जाके फिर बात होता है. ठीक है, तो देखिए दोनों का जो परसेप्शन है, एक मैनेजमेंट का और एक मैनेजर का, दोनों का अलग अलग है. कंपनीज का मैनेजमेंट या कंपनीज का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो डिपेंड करता है 3 थिंग्स पे. पहला है आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद वैल्यू, एंड तीसरा है एक्सपेक्टेशंस. वहीं अगर मैं मैनेजर्स की बात करूं तो मैनेजर्स का भी प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशंस में वो 3 ही है. पहला है पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट एंड रिलायबिलिटी. ठीक है, अब पंक्चुअलिटी, वाई पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट मैनेजर्स को क्या देखना होता है कि हम जो भी एम्प्लॉयज आ रहा है वो टाइम में अपना काम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी टारगेट दिया गया है whether they are able to fulfill the target, set target or assigned target or not. Then the commitments, मैनेजमेंट के सामने मैनेजर ने किया है. जैसे मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी के जो ओनर्स है उन्होंने कहा है कि आप क्या इतना सारा मतलब प्रोडक्शन एक दिन में या हफ्ते में कर सकते हो, तो उन्होंने कमिटमेंट किया, दिया है मैनेजर ने कि हाँ सर मैं इसको
कर दूंगा। तो इतना बड़ा कमिटमेंट, तो इसका भी एक भरोसा होता है, क्योंकि कमिटमेंट जब पूरा करोगे तब जाके आपके ऊपर धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि ये जो विश्वास है, रिलायबिलिटी है, ये एक दिन का चीज नहीं है। इसे खोने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन बनाने में सालों लग जाता है। रिलायबिलिटी, भरोसा, ठीक है। तो अगर आप वो काम आप करके देते हो, मैनेजमेंट की आंखों में आपका एक भरोसा जाग जाता है। मैनेजमेंट विल गोइंग टू गेट रिलाई ऑन यू, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ परसेप्चुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह से कामकाज होता है। मैनेजमेंट की जो थिंकिंग है वो अलग है, मैनेजर्स का जो थिंकिंग है वो अलग है। उनका काम करने का स्ट्रक्चर अलग है, इनका काम करने का स्ट्रक्चर अलग है। मैंने जैसे पिछले वाला क्लास या पिछले पावर पॉइंट पीपीटी में मैंने ये समझाया था कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है। मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, फाइनेंस, रिसोर्स को एलोकेट करना, सॉरी रिसोर्स, और उसके बाद ओवरऑल ग्रोथ किस तरह से होता है देखना। वहीं अगर उससे नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, तो मैनेजमेंट का क्या कमिटमेंट होता है कि जो भी मैनेजर्स का क्या कमिटमेंट होता है, जो भी मैनेजमेंट ने स्ट्रक्चर बना के दिया है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सॉरी, जो भी प्लानिंग, फाइनेंस, पैसा वगैरह सब कुछ जो मुझे दिया है, मुझे अब क्या करना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, सही तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट करना डिफरेंट 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 वे में, ठीक है। रिसोर्स का मिसयूज नहीं करना। तो ये एक पैटर्न है काम करने का पैटर्न। इसी तरह से कंपनी में ये जो इंटरप्रिटेशन है, सोचने की तरीका, ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सोच वाला इंसानों के है। एक एम्प्लॉइज क्या सोचेगा, एक मुलाजिम जो है वो कंपनी में रहते हुए, काम करते हुए, वो अपना दिमाग में क्या सोचेगा कि आज मुझे ये काम, ये टारगेट कंप्लीट करके जाना है। वही मैनेजर क्या सोचेगा, उसका ऊपर मैनेजर सोचेगा आज मुझे इतना काम इतने एम्प्लॉय से निकलवाना है कि मैंने टारगेट सेट किया हुआ है। इसका मतलब एक एम्प्लॉय अपना सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही देख रहा है। मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स उसके जो अंडर में जितने एम्प्लॉयज है उसका काम पूरा देख रहा है। उसके ऊपर जो मैनेजमेंट होता है उसका काम क्या है, पूरा टोटल मार्केट से लेके, प्लानिंग से लेके, रिसोर्सेस तक लेके सब कुछ नीचे से ऊपर तक वो देख रहा है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी बिहाफ में काम होता है। लेकिन इन तीनों में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तार जिसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है। ये दोनों चीज जुड़ा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द परसेप्चुअल प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड मैम। The next is response and action. When we say a behavior or decision is based on interpretation, it means that people act not just on fact, but all on what those facts mean to them. मैंने इस चीज को बहुत बार एक्सप्लेन किया है। ये चीज वही आया है कि मैंने आपसे कहा था इस पिछले वाला स्लाइड में कि इंसान की सोच की फितरत जो होता है वो दो तरह से होता है। मैंने एक साबुन का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें साबुन का एग्जाम्पल एक एडवर्टाइज किया गया है जिसमें दीपिका पादुकोण या कोई भी फिल्म स्टार का वो पोस्टर लगा हुआ है। तो इंसान दो तरह से सोचता है। कोई जो एकदम गांव देहाती वाला वो सोचेगा इस साबुन के साथ ये हीरोइन या हीरो जो भी है वो फ्री है, ये भी मुफ्त में है। और कोई सोचेगा कि सिर्फ साबुन फ्री है, ठीक है। बहुत सारा इंटरप्रिटेशंस या बहुत सारा एक ही चीज का अलग अलग मतलब निकलता है, अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे चावल में पानी डालना या पानी में चावल डालना। अगर मैं आपसे कहूं क्या ये दोनों बात एक ही है, बहुत जन कहेगा हाँ एक ही है, बहुत जन कहेगा नहीं, बहुत जन कहेगा, कुछ जन कहेगा मुझे आता ही नहीं, पता नहीं। चावल में पानी डालना या पानी में चावल डालना, ये क्या दोनों एक चीज है? बिल्कुल नहीं। चावल, पहला क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा, चावल में कितना पानी डालना, पहला सवाल उसमें आता है। दूसरा जो क्वेश्चन था, पानी में चावल डालना है तो कितने पानी में कितना चावल डालना है, कितना पानी होना चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 1 गैलन, 20 लीटर पानी में कितना चावल डालना है। और तीसरा का
तीसरा जिसका इंटरप्रिटेशन है या तीसरा जिसका परसेप्शन है, वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं है, दूसरों के भरोसे में रहेगा। कंपनी का भी यही कुछ प्रोसेस है। कम कंपनी का भी यही प्रोसेस है, यही रूल्स रेगुलेशंस है, और इसी तरह से कंपनीज काम करता है। कंपनीज भी इसी तरह से काम करता है। ठीक है, क्या है कि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं जितने अच्छे तरीके से एम्प्लॉय से बात करूंगा, मोटिवेट करूंगा, हो सकता है इसका फायदा एम्प्लॉयज उठाए, है ना। ये एम्प्लॉयज का ना, ये मैनेजमेंट का कभी कभी ये परसेप्शन रहता हुआ है। दिस दे आर हैविंग अ परसेप्शन ऑफ सच वे that if they feel that the management is going to behave with the employees in a very soft-hearted way, then the management or employees feel that management feels on in our way. मैनेजमेंट को क्या, एम्प्लॉयज को क्या लगता है कि हमारे जैसा ही मैनेजमेंट है, लेकिन वही मैनेजमेंट के कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, उसे ये लगेगा कि खाली फोकट में इन लोगों को हम इज्जत दे रहे हैं, इन लोगों को इज्जत की काबिल नहीं। सोचने की तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, परसेप्शंस जो होता है अलग अलग होता है, और उसी पे निर्भर करता है कि हाउ द एक्शंस गोइंग टू टेक प्लेस, हाउ द बिहेव और द डिसीजंस और एन एक्शंस गोइंग टू टेक प्लेस, isn't it? Sometimes may the employees get rewards for their good work, sometimes they may not get the rewards for or may not be appreciated for their hard work also. दोनों में फर्क है तन्मय। मैंने पहला वाला क्या कहा, समटाइम्स द एम्प्लॉइज गेट एप्रिशिएटेड फॉर देयर गुड वर्क, समटाइम्स दे मे बी रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड वर्क, समटाइम्स occasionally or may often for the hard working of employees they may not be appreciated. तो ये एक्शंस होता है, तो इस एक्शंस पे निर्भर करता है आपका पूरा पिक्चर क्या होने वाला है। फर्ज करो, जैसे इस चीज को और थोड़ा सा मैं समझाता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जितना लग रहा है कि इजी है उतना इजी नहीं है। फर्ज करो मैंने या मैनेजमेंट ने कंपनीज में बोनस का डिक्लेयर किया। अब आपके जो फ्रेंड है एम्प्लॉइज या फ्रेंड एम्प्लॉइज है, उनको बोनस मिला, आपको नहीं मिला, आपके दिल पे क्या गुजरेगा? मेहनत हमने दोनों बराबर किया, लेकिन उनको मिला अप्रिसिएशन, मुझे नहीं मिला। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। प्राइवेट जॉब में जाइएगा ना तो ये सब थिंग्स एकदम होता है, पार्शियलिटीज वगैरह वगैरह, लेग पुलिंग्स, ये सब होता है। तो क्या लगता है आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे? आप उस जगह पे रख के देखो खुद को, आप मोटिवेट कर रख पाओगे? ना तो आप नौकरी छोड़ पाओगे, ना आप अच्छे से काम कर पाओगे। हर समय दिल पे एक पत्थर सा, बोझ सा बना रहेगा कि उनका कितना खुशी है, उसका प्रमोशन हो गया, उनको अप्रेजल मिला, उसको बोनस मिला, मुझे चवन्नी तक नहीं मिला। एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही स्केल में और एक ही रैंक में दोनों काम करते हैं। इस चीज को देखते हुए इसका रिएक्शन क्या आता है? इसका रिएक्शन ये आता है कि उस एम्प्लॉय से मेहनत करना छोड़ देता है। उस एम्प्लॉय अगर डिमोटिव हो जाए तो क्या, कैसा काम करेगा? वो एम्प्लॉय डिमोटिव हो जाता है, काम करने का उतना लगाव नहीं रहता है, किसी तरह से वो अपना काम चलाते रहते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट ने आजकल के दौर पे, न्यू मैनेजमेंट, न्यू कंपनी ने ये पॉलिसी अपनाया है। एंड व्हाट इज दैट पॉलिसी? कि किसी का सैलरी किसी के सामने डिस्क्लोज ना किया जाए। किसी का सैलरी किसी के सामने डिस्क्लोज ना किया जाए। अगर सैलरी का इंप्रूवमेंट, रिक्रूटमेंट होता है, सैलरी का इंप्रूवमेंट होता है, सैलरी बढ़ के आता है, तो बताया नहीं जाता है, दूसरे एम्प्लॉय बता दिया जाता है, उसको एक लेटर मिलता है और वो लेटर को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है।
बताया नहीं जाता है। कभी अगर मैनेजमेंट को पता चले कि किसी तरह से आपने बता दिया है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। क्यों? मैनेजमेंट्स को ये पता है कि अगर सैलरी डिस्क्लोज होगा तो क्या होगा, इसका जो एक्शंस होगा ये गलत एक्शंस हो सकता है। किसी का 5,000 बढ़ा, किसी का 15,000 बढ़ा, किसी का 2,000 बढ़ा, तो इक्वली तो नहीं बढ़ता है ना कंपनीज में। हर एक स्केल में अलग अलग बढ़ता है अपना परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो हर एक एम्प्लॉय अगर अपना सैलरी एक दूसरे से डिस्कस करने लगे तो इसका भी एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो कंपनीज पे आता है, कंपनीज पे गिरता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्शंस, दिस इज कॉल्ड द एक्शंस इन द कंपनी। समझ आया? इज इट क्लियर टू यू? यस सर, यस सर। सर, तो आपने जैसे कहा कि आजकल मैनेजर्स ने जो है कि सैलरीज जो है कि इंक्रीमेंट करते हैं, बट वो मतलब ये नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते। तो मान लीजिए कि हम लोग एक ही मतलब रूम में या एक ही केबिन में सब काम कर रहे कलीग्स, तो कभी ना कभी तो सर बातचीत तो होती होगी ना सर? बातचीत होती होगी भी, तो जितने भी आपके हाँ, हाँ, जिगरी दोस्त है ना, अगर वो हाँ, एम्प्लॉइज मैनेजर ने अपनी केबिन पे बुला के आपके दोस्त को बता दिया, देखिए ये सैलरी आप बताइएगा नहीं, किसी तरह से अगर ये डिस्क्लोज हो जाता है तो क्या होगा, आपको तकलीफ हो सकता है। देखिए, अगर आपका 15,000 बढ़ा है और आपके दोस्त का 10,000 बढ़ा है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इंसानों की फितरत है, वो आएगा ही। एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही कैबिन, एक ही काम आप लोग कर रहे हो, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? ठीक है, जैसे ही आप सुनोगे आप स्थिर नहीं रह पाओगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टे काम एंड क्वाइट by listening that your friend has been appraised with 15,000 salary extra and you have been appraised with only 10,000 salary. Okay, this month ये 5,000 का डिफरेंस हो गया, तो नेक्स्ट साल में उसका फिर बढ़ेगा, आपका वही रहेगा। मतलब वो बढ़ते जा रहा है, आप घटते जा रहे हो, आप उससे कमी आपका हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट ने कहते हैं कि अपना सैलरी डिस्क्लोज मत कीजिए किसी के सामने, जितने भी जिगरे दोस्त है। कभी ना कभी ये गुस्सा फूटेगा, हो सकता है आप चुपचाप रहे, लेकिन तीसरा वाला चुपचाप नहीं रहेगा, वो कभी ना कभी गुस्सा उसका फूटेगा, तो जिससे फूटेगा आप ही के ऊपर ब्लेम आएगा। तो आपका जब ब्लेम आएगा तो आपका अप्रेजल रोक दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज है भाई, प्राइवेट कंपनी पे ये सब चीज कोई मायने नहीं रखता है। कोई आया क्या गया, किसी का सैलरी रोक देना, किसी का सैलरी काट देना, दे डजंट फील। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब या रेलवे एम्प्लॉयज तो है नहीं कि इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हिदायत दिया जाता है। और एम्प्लॉयज भी बहुत सियाने हैं आजकल, बहुत चालाक हो गए हैं। वो जितने भी जिगरी दोस्त है सैलरी कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं। अपनी बीवी तक को नहीं बताता है तो दोस्त तो दूर की बात है। Isn't it? ओके क्लियर सर। है? यस क्लियर सर। है। कोशिश करके देख लेना एक बार। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो बोलना तुमको जो सैलरी तेरा इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो थोड़ा सा उसका जो वो लोग क्या करता है, मुंह में नहीं बताता, और लिफाफा में एक लेटर की तरह भर के, एनवलप में भर के आपको देगा। तो पता ना, वो एनवलप दिखा के कभी आपके दोस्त आपको नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। 90% तो होता है, एक्सेप्शनल 10% तो जिंदगी में रहता ही है। अगर एक दो दिखा दिया तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 90% एम्प्लॉय, 100 में 90% जो होता है दिखाता नहीं, कभी नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। रोल परसेप्शंस, परसेप्शंस का रोल क्या है? परसेप्शंस का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है, एम्प्लॉइज क्या सोच रहा है, सिचुएशन क्या है, कंपनी का पोजीशन क्या है, कंपनी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कंपनी आगे बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो हमारा क्या होगा, कंपनी नहीं बढ़ा तो हमारा क्या होगा, कंपनी अगर घाटे में जाता है तो हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता है। दिस ऑल कम्स अंडर इंटरप्रिटेशन, दिस ऑल कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहला इसका क्या है, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉइज एंड कस्टमर। सबसे पहले परसेप्शंस का ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने एम्प्लॉइज को जानिए। आपका अगर थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपका आप में क्षमता है किसी को परखने का, आप ऐसा सोच रखते हैं मेंटली, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, आप सोच सकते हो कि ऐसा ऐसा किसी के मतलब एम्प्लॉइज क्या चाहता है, अभी एम्प्लॉइज में क्या तकलीफ है, क्या चाहिए, तो आप फिर कंपनीज
को आगे ले जाने में के लिए आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द नर्व्स ऑफ द कंपनी। तो आपने नर्व जानते हो, कंपनी का कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयज का कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस एम्प्लॉय कैसा है, आप सब जानते हो। तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है एम्प्लॉयज कंपनीज को आगे ले जाने के लिए। इसीलिए जानते हो एचआर डिपार्टमेंट जो था पहले नहीं था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये नहीं था पहले। ब्रिटिश जमाने में हो या उससे बाद हो, कंपनीज जब इंडिया में आफ्टर 1947 जब कंपनी स्टैब्लिश हुआ तो इस तरह का फैसिलिटीज था नहीं। अभी जो है एचआर डिपार्टमेंट, बाद में एचआर डिपार्टमेंट बनाया गया। मैं साल भूल जा रहा हूं, कोई 2000 करीबी 2001 और 2 में एचआर डिपार्टमेंट धीरे धीरे बनने लगा, कंपल्सरी किया गया। लास्ट में जो भी कंपनीज है वो ह्यूमन रिसोर्सेस वेलफेयर डेवलपमेंट एक अलग सा डिपार्टमेंट, एक अलग सा विंग आप लोगों को खोलना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी का अप्रूवल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्यों किया गया? मैनेजमेंट के पास वक्त नहीं होता है, मैनेजर्स के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि एक एक एम्प्लॉयज का क्या क्या तकलीफें है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसलिए वो डिपार्टमेंट या विंग बनाया गया है, जिससे उनका काम ही होता है एम्प्लॉयज का सब कुछ देखना, उसका सैलरी स्लिप बनाना, उसका अटेंडेंस ठीक करना बनाना, उसका सीएल कितना है, अर्निंग लीव कितना है, पीएल कितना है, और उनका क्या प्रॉब्लम्स है, इंक्रीमेंट्स हुआ है कि नहीं हुआ है, अप्रेजल हुआ है कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व बाय द एचआर डिपार्टमेंट। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज तक ही सीमित है, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो आप जितना अच्छी तरह से एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड करोगे, जितने अच्छी तरह से आप एम्प्लॉयज को पढ़ोगे, उतना ही आपका कमिटमेंट, उतना ही आपका जॉब सेटिस्फेक्शन, उतना ही आप मोटिवेट कर पाओगे, जिसकी वजह से इसका जो फायदा है वो कंपनीज को होने लगेगा। अंडरस्टैंड? फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टू द फर्स्ट पॉइंट का ही सेकंड पार्ट देखो, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर परसेप्शन हेल्प इन टेलरिंग प्रोडक्ट सर्विस एंड कम्युनिकेशन टू मीट द एक्सपेक्टेशंस। अब ये पहला है एम्प्लॉयज को लेके, दूसरा है कस्टमर को लेके। अगर आपका सोच अच्छा है, if you have a very good thought process, if your perception is damn good, then you can understand the feelings of customer also. मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था ना, कदमा में एक दुकान है, छोटा सा दुकान है, चप्पल का जूता का दुकान है। मैंने इसका एग्जांपल पहला दिन जब क्लासेस हुआ था ऑर्गेनाइजेशंस का, मैंने वो एग्जांपल दिया। तो ये एग्जांपल यहाँ पर ठीक बैठता है। क्यों दिया था? देखो, कस्टमर्स को भी, जो कस्टमर्स डील करते हैं उनको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है ना। आप जैसे जाओगे, आपको देख के, आपका चॉइस को देख के वो परखने लग जाएगा कि आपको चाहिए क्या। जैसे अभी आप फेसबुक वगैरह या रील्स जब देखते हो फेसबुक में, आप एक चीज गौर किए हो, डू यू नोटिस और नॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो गया, अगर आप कोई चीज को, कोई भी रील्स को एक बार या 2 से अधिक बार देख रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी टाइप का रील्स आपके मोबाइल में आते रहेगा। यस सर, मैंने नोटिस किया। हाँ, दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये प्रोग्रामिंग या कोडिंग्स इस तरह से बनाया गया है कि जिस इंसान ने एक रील को 1 मिनट से ज्यादा या 2 बार 3 बार देखा, तो कमांड दिया गया, वहां पर कमांड लिख के आया, कोडिंग्स बनाया गया कि वही सेम कंटेंट, वही सेम रील्स उनके मोबाइल में आना चाहिए। इस तरह से कमांड दिया। इसलिए आजकल के हैंडसेट में, आजकल के मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर लग रहा है, आप उस पर देखिएगा, कोई भी रील्स अगर आप 1 मिनट आधा मिनट ज्यादा देख रहे हो, तो नेक्स्ट आप जब स्क्रॉल कीजिएगा देखिएगा वही आ रहा है, वही सेम चीज आ रहा है। तो ये भी, ये तो हो गया मशीनरीज हो गया। तो कुछ जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कस्टमर्स परखने का माहिर होते हैं, माहिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो ये कदमा एग्जाम्पल दिया, इसका सबसे अच्छा आप अगर हो ना, तो आप कोई डायमंड सेक्शन, गोल्ड सेक्शन या सिल्वर सेक्शन या ज्वेलरीज दुकान में चले जाइए। ज्वेलरीज के जैसे छगनलाल दयाल जी एंड सन्स, कभी हो सके तो वहां पर जाइए। आप लोगों के लिए, अगर आप लोग पीएचडी करोगे ना, तो ये सब जगह आप लोगों को जाना पड़ेगा। आप छगनलाल दयाल जी एंड सन्स में चले जाइए, वहां पर देखिए जितने भी बुजुर्ग एम्प्लॉइज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रेश एम्प्लॉइज, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एम्प्लॉइज हु आर little experience, they are having experience for 5 to 10 years. You just go there and observe them very carefully. What you notice, अगर आप कहेंगे अंगूठी, तो simple, just looking at your fingers, they can point out that what is the size of a ring you required for your fingers. आप अगर अंगूठी बनाना चाहते हो, वो
अंगूठी का मेजरमेंट आपसे उस तरह से नहीं लेंगे, इतना एक्सपीरियंस उनका हो गया है तो आपको उंगली देख के समझ जाएंगे कि भाई इसको इतना नंबर ही चलेगा। जैसे जूते की दुकान में चाहिए, आपके लिए कितना नंबर क्या नंबर है पूछना नहीं पड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा पैर दिखाइए, यू जस्ट शो देम योर फीट, the shopkeeper automatically understand that this much numbers of shoes it will going to fit in your feet, it will going to fit in your feet. Okay, this is the experience, this is the perceptions of the employees who are dealing with the customers. और कस्टमर्स भी ना इस तरह का ना एम्प्लॉयज को खोजते हैं, कस्टमर्स भी इस तरह का एम्प्लॉयज को खोजते हैं बार बार। आप देखिएगा क्यों, ज्यादा बकना नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयज जाता है तो चीज खरीदने के लिए, अगर 15 बार बक दिया तो फिर एम्प्लॉयज को भी कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगता है, दूसरे बार ना उनके पास खरीदने नहीं आएगा। एक समान छोटा सा सिंपल चीज आपको बताते हैं, आप कोई किराने की दुकान में चले जाइए, कुछ सामान मंगवाइए, आप अगर उनसे पूछिएगा 1 किलो चावल दीजिए, 1 किलो दाल दीजिए, 1 किलो ये दीजिए, 1 किलो वो दीजिए, वो तुरंत निकाल के देगा। लेकिन वही अगर कुछ कस्टमर्स है जो आपसे बार बार दाम पूछेगा, ये मिनीकेट चावल कितना का है, ये गोपाल भोग चावल कितना का है, ये कितना का है, वो कितना का है, और वो तुरंत आपको जवाब दे रहा है और तुरंत आपका सामान बांध रहा है, तो नेक्स्ट बार जब आप आइएगा ना, आप उसी से सामान लिख पाइएगा। और भी एम्प्लॉयज है काम कर रहे हैं लेकिन उतना फास्ट नहीं है, उसको बहुत कुछ समझाना पड़ रहा है, बहुत कुछ बोलना पड़ रहा है, कितना रुपया किलो पता नहीं है, मालिक के पास दौड़ रहा है, उसके बाद बताकर वो बता रहा है कि इतना रुपया किलो है, कितना दीजिएगा। फिर एक सामान आप पूछिएगा, फिर वो मालिक के पास जाएगा दौड़ के, मालिक कितना है इसका दाम, ऐसा है। तो कोई इंसान फिर उसके सामने उसके सामने जाके खरीदेगा नहीं, उससे सामान ले ही लेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग जब नाई की दुकान में जाते हैं बाल कटवाने के लिए या दाढ़ी बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, देखिएगा कुछ कुछ कस्टमर्स होते हैं जिससे वो रेगुलर काटते हैं, उन्हीं के पास जाके वो बैठते हैं, नया जो होता है उनके पास जाके बैठते नहीं है। एकदम ये चीज गौर कीजिएगा। मैं तो करता हूं, आप करते होंगे नहीं पता नहीं, आई यूज्ड टू डू दैट, लॉट ऑफ कस्टमर यूज्ड टू डू दैट। क्यों करते सर हैं? मैंने आज खुद बाल कटवाया है, मतलब जिस दुकान में मतलब जाता रहता रेगुलर जाना है उसी के पास करवाता हूँ। रेगुलर जाना दुकान में अलग बात है, लेकिन रेगुलर मतलब जो जिससे कटवाते हो उसी से कटवाना हाँ, ना। उसी से हाँ हाँ हाँ। मतलब हाँ, बोलने तो का इसका मतलब बोल रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो आप कस्टमर जिसके पास बिठा के इतने सालों से बाल कटवा रहे हो, उसको पता है कितना छोटा मुझे रखना है, कितना बड़ा मुझे रखना है, कैसे इसका शेप करना है, कैसे इसका कटिंग करना है, ईच एंड एवरीथिंग दे नो अबाउट द कस्टमर्स। वही आप दूसरे चेयर में कोई नया फ्रेश एक एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट हुआ है नाई के दुकान पे और वो आपका बाल काटना चाहेगा, तो आप बैठोगे, लेकिन आपको बहुत बकना पड़ेगा। हो सकता है उसका कटिंग से आपको पसंद ना आए, हो सकता है वो जैसा कटिंग कर रहा है उससे आपको पसंद भी ना आए, ठीक है, आपका हो सकता है शेप इधर उधर हो जाए। तो इसी तरह से जो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कस्टमर, ये बहुत बड़ा आर्ट है। किसी किसी में बहुत फास्ट आ जाता है एक्सपीरियंस और किसी किसी में बिल्कुल नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी वो सोच भी नहीं सकता, वो कभी डील नहीं कर पाएगा। इसलिए कस्टमर डीलिंग्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने ये जो एग्जाम्पल आपको दिया, 2-3 एग्जाम्पल, इसमें से मैंने छगनलाल दयाल जी एंड सन्स का एग्जाम्पल दिया। छगनलाल दयाल जी एंड सन्स में डायमंड सेक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, बिष्टुपुर में छगनलाल का दुकान है, जो बड़ा दुकान है उसमें डायमंड सेक्शन है। बहुत सारा सेठ मारवाड़ी सेठ आते हैं डायमंड खरीदने के लिए। आप जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं। छगनलाल दयाल जी जो मालिक है, उसने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज्यादा अमाउंट देके वो डायमंड सेक्शन में रिक्रूटमेंट करके बिठा के रख दिया है। उनका काम है, डायमंड तो कोई ज्यादा तो कोई खरीदता नहीं है, सिर्फ जो गिने चुने इंसान ही खरीदते होंगे, पहनते होंगे, क्योंकि
हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली को डायमंड पहनना शोभा तो नहीं देता है, और दूसरी बात है हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, करोड़ों में आता है, करोड़ों में। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारे मरवाड़ीज आते हैं 50 लाख, 10-15 लाख, 20 लाख का एक छोटा सा डायमंड लेके जाएंगे। तो इस डायमंड का सिर्फ डील करवाने के लिए ना, जानते हो, वो मालिक जो है वो एक सेल्समैन को, एक्सपीरियंस सेल्समैन जिसका 15 साल का बेचने का एक्सपीरियंस है, उसको वो चेयर में बैठा के सिर्फ और सिर्फ रख देते हैं, और पगार लाखों रुपए होगा उसका, 50,000, 60-70 हजार, लाख रुपए उसका सैलरी है। तो जानते हो हाँ सर। वाई? इसलिए अगर वो एक डायमंड बेचा तो उसके ऊपर कमीशन प्लस सैलरी इतना आता है। एक डायमंड बेचने पर 10% सैलरी, मतलब उसका सिर्फ ये देता है, कमीशन देता है। तुमको क्या लगता है डायमंड क्या छोटा मोटा दाम है? करोड़ों का डायमंड है। अगर कोई डील कर देता है, सेल्समैन अगर डील कर देता है, तो उसका 10% उसको, 5% या 8% उसको मिलता है, ऊपर से सैलरी उसको तो मिलता ही है मंथली। ये जो मैंने बताया ना, आप कभी एक बार बिष्टुपुर छगनलाल का जो सबसे बड़ा है दुकान है छगनलाल, वहां पर चले जाइएगा। सिग्नल के पास। हाँ, सिग्नल के पास ही है। अब कभी घूमते घूमते चले जाइएगा, कुछ लेना है तो। जो धनतेरस, दिवाली आ रहा है, दिवाली धनतेरस में जाइएगा तो भीड़ में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट ऐसा ऑफ सीजन में आप जाइएगा, देखिएगा डायमंड सिक्स में एक सेल्समैन सज धज के एक्सपीरियंस बंदा बैठा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके लिए अलग केबिन, अलग एसी। डायमंड डील कर रहा है ना, तो डायमंड डील करने के लिए मतलब उसका अलग कंफर्ट रूम, उसका अलग पूरा, कोई नहीं आएगा। इतना खतरनाक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे क्यों सर? जैसे बहुत जन है जो एस्ट्रोलॉजर पॉइंट ऑफ व्यू से पहनता है डायमंड। अब जैसे उसको चाहिए 11.11 का एकदम प्योर कट का डायमंड चाहिए, या फिर आपको 12.5 कैरेट का डायमंड चाहिए। अब इस चीज को निकालना, इस चीज को ढूंढ के निकालना, पूरा परफेक्ट शेप, साइज, कटिंग, कलर, तब जाकर ना कोई कस्टमर लेगा, तब जाकर डील फाइनल होगा। तो इसलिए एक जब कोई डायमंड जो खरीदता है ना, वो जब डील करवाता है उसका, तो एक कस्टमर को डील करने के लिए घंटा लग जाता है, घंटों लग जाते हैं। यू डोंट इमेजिन। तो इस चीज आप देखिए, कैलकाटा में तो है बहुत सारा, लेकिन मैं आपको जमशेदपुर में बिष्टुपुर सिग्नल के पास ही मैंने देखा है ये चीज। आप एक बार कभी जाके इस चीज को गौर से देख के आइएगा। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मम्मी कुछ खरीदना था, मम्मी को लेके हम गए थे, तो मम्मी कुछ खरीद रही थी। उनको तो, मम्मी को तो जानते हो, तो माता जी को जल्दी तो कोई पसंद नहीं आता है। तो मैंने वो चीज जस्ट नोटिस किया, तो मैंने चट से उठ के बोला, वो क्या चल रहा है अंदर में, क्या सेक्शन है? बोला सर वो डायमंड सेक्शन है, वहां सिर्फ और सिर्फ डायमंड डील होता है और कुछ नहीं। तो मैंने थोड़ा सा झांक के मैंने देखा, एक सोफा, मतलब एम्बियंस देखो तन्मय, यू विल सरप्राइज टू नो दैट सोफा लगा हुआ है, बहुत सुंदर सोफा, अंदर का एम्बियंस जबरदस्त, बहुत सारा खाने का सामान, काजू बर्फी वगैरह सब सजा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब सजा हुआ है। और जो डील कर रहा है वो एकदम, मतलब ऐसे लगेगा कि जनरल मैनेजर बैठा हुआ है, वो डील कर रहा है। कूल डील, कूल डील। अंदर तो जाना अलाउ नहीं है, छोटा सा मैं जस्ट झांक के थोड़ा सा देखा। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया, बाद में थोड़ा सा बातचीत करके पता चला कि डायमंड सेक्शन इस तरह से डील होता है। तो जब मैंने पूछा सर क्या है, बोला सर वो तो करोड़ों का है, अगर वो क्रैक कर देगा उसका 8% उसको मतलब कमीशन मिलता है, प्लस लोगों का सैलरी बहुत जबरदस्त है। तो मैंने पूछा आप लोग काहे नहीं सेक्शन जाते हो? बोला सर उसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए, बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। सर उनका सैलरी जो होता है लाखों रुपए में होता है। कैन यू एवर इमेजिन? दिस इज द थिंग। तो इफ यू अंडरस्टैंड द कस्टमर, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, सोच नहीं सकते हो। ओके नेक्स्ट मैम। हाँ, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस मेकिंग, समझ में आया? करना है पहला वाला, पिछले वाला जो स्लाइड मैंने समझ में आया? ये सब, ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं यूनिक एग्जांपल्स है, कभी टाइम मिले तो जाके देख के आना। अच्छा, नेक्स्ट है रोल ऑफ परसेप्शंस। रोल ऑफ परसेप्शंस में एक और दूसरा है इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज दैट? इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग लेने में हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, हम आगे बढ़ते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हम पॉजिटिव डिसीजंस ले। ओके, हमारा जो परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द रिस्क, वो फिर बढ़ जाता है। डिसीजंस लेने की क्षमता अगर आप में है,
तो आप कोई भी रिस्क ले सकते हो, कोई भी कंडीशंस में आप अपने आप को फिट कर सकते हो, आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो जबरदस्त होगा, आपका जो मार्केट कंडीशंस है वो जबरदस्त रहेगा. दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ डिसीजन मेकिंग्स. ओके, नेक्स्ट, role of perception shapes behavior. What is that shapes behavior? Employees act according to their perceptions of fairness, recognitions, and organizational culture. What is positive perceptions? Higher engagement and productivity. Negative perception, low moral, absenteeism of turnover. देखिए, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज काम कैसे करें. आप में अच्छा क्वालिटीज है, आप एथिक्स मेंटेन करते हैं, आप में अगर मोरालिटी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट द एम्प्लॉयज अंडर योर कंपनी दे विल ऑल्सो फॉलो दैट नॉर्म, दैट एथिक्स, दैट मोरालिटी, एंड दे विल गोइंग टू डू एंड दे विल गोइंग टू गिव देयर 100% परफॉर्मेंसेस. बट अगर इसी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट होता है, नेगेटिव होता है, तो व्हाट विल हैपन? दिस विल गोइंग टू क्रिएट एब्सेंटिज्म कंपनी में. देखिएगा, जो ठेकेदार के अंदर में काम करता है, ठेकेदार लोगों को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है कंपनीज में. ठेकेदार लोगों को आज एम्प्लॉयज आया, कल दूसरे के पास चला गया. ठेकेदार लोगों को टेंडर उठा के पैसा तो ले लेता है, पैसा उठा के टेंडर तो ले लेता है, लेकिन उन लोगों को एम्प्लॉयज ढूंढ के काम करवाना सबसे बड़ा मुश्किल की बात है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग की बात है. क्यों? ठेकेदार जो होता है गाली गलौज करने वाला होता है, तो एम्प्लॉयज काम करना ही पसंद नहीं करते. जो गाली गलौज करेगा, दिन भर उठते बैठते गाली गलौज करेगा, जिसको मजबूरी है वो काम करेगा, लेकिन जिसको मजबूरी नहीं है वो दूसरे कंपनी में चला जाएगा. कंपनी ओपन है और जिसको पता है कि मुझे स्किल आता है, मैं अच्छा काम जानता हूं, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है. ही कैन शिफ्ट टू एनी कंपनी एंड डेफिनेटली ही विल गोइंग टू गेट अ गुड जॉब. तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है अगर आप नेगेटिव बात करोगे, नेगेटिव मोरल रहेगा, आपका परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू अगर नेगेटिव रहेगा, तो आप उसके कंपनीज के लॉस कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए आजकल की कंपनीज में मैक्सिमम ठेकेदार लोगों को काम दे दिया जाता है. मुझे जैसे भी हो हर हाल में काम खत्म करवाइए, आप पैसा ले लीजिए, जैसा आप काम करवा दीजिए. ठेकेदार का हेडेक बन जाता है. कंपनीज वाले को नहीं करते. जैसे टाटा स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट में टाटा एम्प्लॉयज अब गिने चुने रहेंगे, 200, 250, 300 एम्प्लॉयज है. मैक्सिमम जितने एम्प्लॉयज है, दे आर ऑल अंडर सुपरवाइजर. दे आर ऑल अंडर सुपरवाइजर. जब 5 बजे वो साक्षी वाला जो गेट खुलता है, साक्षी जाते वक्त जो वाला गेट खुलता है, जब हम साक्षी की तरफ जाते हैं तो एक गेट खुलता है 5 बजे. देखिएगा जितना ठेकेदार वाला एम्प्लॉयज है ना, वो 5 बजे निकलते हैं वहां से. कभी आइएगा, देखिएगा, दे ऑल आर वर्किंग अंडर सुपरवाइजर एज अ थर्ड पार्टी पेरोल. तो उनका क्या है, ये आज इस कंपनी में अच्छा लगा रहा, कल अगर उसको कोई दूसरे कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा सैलरी मिलेगा तो वो चल जाएगा. ठीक है, तो नेगेटिव अगर कोई बोलेगा तो ठेकेदार के पास एम्प्लॉयज रहते भी नहीं. और इसका गलत फायदा भी होता है, क्या गलत इस्तेमाल भी होता है. जब भी एम्प्लॉयज आते हैं तो किसी ने काम मैं बोल दिया कि भाई वो एकदम फालतू एम्प्लॉयज है, उसके पास कोई एम्प्लॉयज काम ही नहीं करता है. ठीक है, दूसरे एम्प्लॉयज के पास चला जाता है. तो ठेकेदार और ठेकेदार के अंदर में बहुत झड़प भी होता है, गुस्सा भी होता है, मारपीट भी कभी कभी हो जाता है कि तू मेरा एम्प्लॉयज खींच गया, तूने मेरा एम्प्लॉयज ले लिया है. दीज आर द प्रॉब्लम्स. ओके, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस जो मैंने आपको बताया, एनहांस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस. आपका अगर परसेप्शन या वे ऑफ थॉट प्रोसेस अगर बहुत बढ़िया है, तो इससे फायदा क्या होगा, आपका जो रेजोल्यूशंस है, आपका जो रिजल्ट है, वो अच्छा आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा. आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा. यू विल गोइंग टू फाइंड आउट अ वेरी गुड रिजल्ट if you keep your moral high, if you keep your ethics high, if you know how to work with, how to deal with the employees, definitely you're going to get a very good result from the employees. ठीक है, this is the shapes of behavior of perception. Next slide, ma'am. Now, characteristics of a person. Persons the characteristics कैसा होना चाहिए? In organizations behavior, or sorry, in organizational behavior, the characteristic of a person refer to the
personal attributes that influence how an individual thinks, feel, and behave at work. These characteristics affect performance, interactions with others, and overall effectiveness in the organization. Okay, now the person who is working in the company, the person who is working in the company, if they behave in a properly, if they have a very good EQ level, that is emotional quotient level, they have a very good quality of attributes, then definitely that employee will going to shine in the company. हिंदी में इसका अनुवाद ये है कि किसी एम्प्लॉयज का सोचने की क्षमता अच्छा है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पंक्चुअल से और डेडिकेशन से काम करता है, जो भी काम दिया जाता अच्छे से वो निभाता है, तो कहते हैं इस तरह के एम्प्लॉयज का डिमांड बहुत ज्यादा है. इमोशनल क्वोशंट लेवल, ईक्यू लेवल जिसे कहते हैं, अगर किसी इंसान या किसी एम्प्लॉयज का जबरदस्त है, अच्छा है, तो वो एम्प्लॉयज कहीं भी कैसे भी परिस्थिति में टिक के काम करके आ जाएगा. लेकिन आईक्यू अच्छा है लेकिन इमोशनल क्वोशंट लेवल अच्छा नहीं है, तो फिर आप कहीं टिक के काम नहीं कर पाओगे. इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर somebody else who has IQ level equal to 0, he or she cannot survive in the company. It is next impossible. ठीक है, तो एक अपना जो एट्रीब्यूट्स है वो अच्छा होना चाहिए. कहते हैं कि अमेरिकाज में या फॉरेन कंट्रीज में हजारों की तादाद में जॉब हर दिन चला जाता है और हजारों एम्प्लॉयज का जॉब फिर लग जाता है. क्यों जानते हो? इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है विदेशों में जहां एम्प्लॉयज एक टिक के काम नहीं करता है. वो एक कंपनी से निकला जाता है, तुरंत 1 घंटे के अंदर दूसरे कंपनी में काम करना शुरू कर देता है. That is why in the foreign countries, maximum European countries, you cannot find unemployment students or unemployed, uneducated, unqualified employees in the street roaming here and there. जो अड्डा मारने का जो कंसेप्ट है ना, ये हमारे सिर्फ भारतवर्ष में है. जो हम लोग अड्डा मारते हैं पुल पुलिया, बगान में, किसी के पेड़ के नीचे, पान दुकान में, चाय के टपरी में, जो अड्डा मारने का जो कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है. आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, देयर इज नो सिस्टम ऑफ, मैंने वो समय नहीं है टू वेस्ट टाइम इन दिस वे. ओके, चाइना में चले जाइए, 24/7 वर्क हो रहा है. देयर इज नो हॉलीडे इन द चाइना. कोई फेस्टिवल तो है नहीं, लेकिन हमारे इंडियन में 365 दिन में 400 फेस्टिवल्स है, उसमें से छुट्टी है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी. और चाइना से ये, चाइना में ओनली आई थिंक इन द मंथ ऑफ इन बुद्धिज्म, जब उनका तो बुद्धिज्म है ना, तो गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है, जन्मदिन होता है या महावीर जयंती होता है, तब शायद लोगों का छुट्टी रहता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब लोगों का छुट्टी रहता है. क्रिसमस में छुट्टी रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वन डे वो भी, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वर्किंग 24/7. कंपनीज में ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, स्पेशली चाइना कंपनीज, दैट आपको 16 to 18 आवर्स, 19 आवर्स एवरी डे आपको काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क. तो कहते हैं घर उसका सेकंड होम हो जाता है. जो चाइना में काम करते हैं एम्प्लॉयज, घर उसका दूसरा घर हो जाता है. अपना घर दूसरा घर हो जाता है, पहला घर उसका कंपनी हो जाता है. Isn't it? तो क्या होता है कि इस शिद्दत से अगर आप काम करोगे, अच्छे विचारों से आप अगर काम करोगे, तो कोई भी कंपनी आपको रखेगा, कोई भी कंपनी आपको निकालेगा नहीं. लेकिन वही आपका नेगेटिव सोच है, नेगेटिव बिहेवियर है, एम्प्लॉयज के साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हो, देन सॉरी, आपको कंपनी से फिर निकाल दिया जाएगा. ओके, इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट स्लाइड मैम. यस सर. एटीट्यूड्स कैसा होना चाहिए? हाउ द एटीट्यूड्स मस्ट बी? एटीट्यूड्स सेटल डाउन वाला एटीट्यूड्स होना चाहिए. सेटल डाउन एटीट्यूड्स, व्हाट डज इट मीन? सपोज your supervisor, though you know that the task that is been assigned to me, it's not going to complete in a one day, but your boss want that company to be finished by 5 p.m. Please switch off the mic.
I am getting disturbed, Mr. Nilanjan. Thank you. Now you know the situation, you know the circumstances, but you keep your mind cool and you calm down and you settle down. That is called attitudes. एटीट्यूड का इससे अच्छा कोई डिफिनेशन मैं नहीं दे सकता हूं. यही एटीट्यूड है. आप अगर सेटल डाउन हो जाते हो एनी सिचुएशंस में, यू कैन सेटल डाउन, जम जाते हो, दैट इज द एटीट्यूड्स. लेकिन वहीं पर अब जब आर्ग्यूमेंट्स में कर जाते हो, नोक झोंक करने लग जाते हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, सो एटीट्यूड्स, the first impression or the first thing of a person who has an attitude, a very good attitude, is that in a conditions he settled himself. That is another word for attitudes is the concept of adaptability. ठीक है. लेकिन हाँ, किसी किसी का एटीट्यूड थोड़ा तीखा रहता है, किसी किसी का एटीट्यूड थोड़ा सा अपने लेवल से ज्यादा हाई रहता है, वो अलग बात है. लेकिन अगर कंपनी में रहना है तो आपका एक ही एटीट्यूड होना चाहिए. व्हाट इज दैट एटीट्यूड? एटीट्यूड्स इक्वल टू सेटल डाउन. देयर इज नो अदर वे आई कैन डिफाइन और you may understand attitude means. Attitude means to settle down, simply settle down. बॉस के पास मैनेजर्स एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, एम्प्लॉइज मैनेजर के सामने या सुपरवाइजर के सामने अपना एटीट्यूड नहीं दिखा पाएंगे. तो क्या होगा? क्या है? एक दूसरे से सेटल डाउन कर लेना, मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग. दो यू नो वट एवर द थिंग्स गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशंस, it's not clean enough, it's very messy and untidy, the work culture is very poor, but you keep quiet, you became dumb, you became numb, and you had to do your work. That is called settle down. तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एम्प्लॉयज का? ये एटीट्यूड्स होना चाहिए एम्प्लॉयज का, that whatever the task is there or assigned to me, I had to do it, I had to fulfill it, because you know one thing, boss is always right. So if your boss has given you some task and are requesting you and have ordered you that within a day you need to complete the task, though you know that it is next impossible to complete the work, but still you have to settle down. That is the attitudes. Okay, because जिसने आपको काम दिया है उसको भी कोई काम दिया है, ये आपको समझना पड़ेगा. You need to understand. उसको भी नौकरी खतरे में है. आपका गया तो गया, उसका भी चला जाएगा, तो उसको भी मैनेजमेंट के सामने सेटल डाउन होना पड़ेगा. Influence on perceptions. What is that influence on perception? People with positive or negative attitude towards a person, task, or organizations tend to interpret situations in line with those of attitude. Sometimes what happens, the employees try to interpret the situations. They understand that this may going to happen because they may have some experience for their continuation, a same type of job in a company. So they can interpret, they can feel, they can understand that after this will going to happen to me. And for that, they prepared themselves. ठीक है, in a company, they prepared themselves. हाँ, ऐसा होने वाला है, मैं पहले से तैयार रहूं. Okay, this will going to create a very good impact in the minds of the organizations. अगर आप पूरा तैयारी के साथ रहते हो ना ऑर्गेनाइजेशंस में, तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता. तैयारी का मतलब क्या है? तैयारी का मतलब है whatever the task that has been given to you, आप काम बेहतर करके, पहले करके कंप्लीट करो. जब ये भरोसा क्रिएट हो जाएगा ना कि ये बंदा तो काम पहले से ही कंप्लीट करके रख देता है, तो फिर आपकी जो उंगली उठाने वाले होंगे ना, वो धीरे धीरे देखिएगा उंगली कम उठाने लगेगा या फिर टोटली बंद हो जाएगा. जवाब इसी तरह से दिया जाता है. बिकॉज आप अगर एटीट्यूड्स दिखा के जवाब दीजिएगा ना, तो हैम्पर आप ही को होगा. बेहतर है आपको अगर उसका जवाब देना पड़ेगा, इफ यू वांट टू आंसर हिम और योर बॉस, द बेस्ट वे टू आंसर इज जस्ट कीप क्वाइट,
and show your performance. Upgrade your skill, show your performance. You can see that definitely he is getting the answer. But मैंने गलत इंसान को या गलत जगह पर गलत टाइम में छेड़ दिया. Isn't it? Yes, sir. देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है. An employee with a positive attitudes towards teamwork may see a group project as exciting, while another with a negative attitude may see it as a burden. एटीट्यूड के साथ अगर कोई काम आप देखोगे तो आपको वो बोझा ही लगेगा तन्मय. लेकिन एटीट्यूड रहित अगर आप काम देखोगे जो आपको मिला है तो आपको एक्साइटमेंट होगा. You will feel the excitement. You will going to feel the excitement. ओ नया काम, कुछ नया सीखने को मिलेगा. लेकिन वही एटीट्यूड्स ईगोनेस दिखा के जब काम करने के लिए जाओगे तब क्या होगा? इट विल शो द बर्डन. आपको लगेगा मेरा कंधों पे बोझ चला गया. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट है? एनी सर एक बार एटीट्यूड वाला फिर मैंने कहा एटीट्यूड्स का मतलब क्या है? हाउ यू बिहेव टुवर्ड्स अदर, हाउ यू शोकेस योरसेल्फ टुवर्ड्स अदर, दैट इज एटीट्यूड्स. हाउ यू शोकेस योरसेल्फ टुवर्ड्स अदर और हाउ यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स अदर, दैट इज एटीट्यूड्स. ये तो हो गया डिफिनेशन बुकिश वाला. मैंने कहा एटीट्यूड्स इक्वल टू सेटल डाउन. इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी देन व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड्स यू नीड टू इनहेरिट इन योरसेल्फ. क्या आप अपना एटीट्यूड शोकेस कर पाओगे किसी के सामने? बताओ. कैन यू शोकेस योर एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉइज और इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर्स? नो सर. एटीट्यूड्स का कुछ कुछ जो सिमिलरिटीज है वो ईगोनेस से भी मिलता है, जिसमें जितना अकड़ रहेगा ना तोड़ने में उसको उतना ही मजा आता है. तो एटीट्यूड्स का मतलब थोड़ा कुछ हद तक जो होता है वो ईगोनेस तक जाता है. ईगोइस्टिक पीपल्स का एटीट्यूड्स बहुत ज्यादा रहता है. तो इस तरह का इंसान जिसमें आईक्यू इमोशनल कोशेंट लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, और ऐसा इंसान जो होता है वो किसी भी फील्ड पे सरवाइव इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो. पर्सनल लाइफ में इगोइस्टिक या एटीट्यूड्स अपनी बीवी के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ दिखाएगा, लॉसेस वही खुद जाएगा. कंपनीज में काम करेगा तो अपने बॉस या अपने छोटे एम्प्लॉयज को एटीट्यूड्स दिखाएगा. इट विल गोइंग टू क्रिएट वेरी बैड इंप्रेशंस इन द माइंड ऑफ द मैनेजमेंट दैट दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज इज नॉट वर्किंग इन माय कंपनी. ठीक है. तो एटीट्यूड्स का इसीलिए मैंने डेफिनेशंस ये बताया कि एटीट्यूड्स अगर आपको रखना है कंपनीज में उसका एक ही उपाय है, सेटल डाउन करना. हाउ टू सेटल डाउन? यू नो द टास्क व्हिच हैज बीन असाइन्ड टू यू, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कंप्लीट इन अवर डे, बट स्टिल no, you need to settle down, you need to keep yourself calm and do the work. This is the way you need to handle or tackle your attitudes. आप में ईगोनेस है, आप इगोइस्टिक हो, लेकिन अगर उसे आप प्रकाशित करोगे किसी के सामने तो उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा. दिस इज द एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स का मतलब होता है टू शोकेस योरसेल्फ और टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. इज इट क्लियर? आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, अपने आप को शोकेस कैसे करते हो दूसरों के सामने, उसे ही एटीट्यूड्स कहते हैं, जिसमें आपका बिहेवियर, आपका परसेप्शंस, आपका इंटरप्रिटेशंस, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका कोऑर्डिनेशंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये आठों उसमें इंक्लूड होता है. एम आई क्लियर? जिसका एटीट्यूड जब से ज्यादा होगा उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा रहेगा? बहुत फालतू रहेगा, बकवास रहेगा. क्यों? बात ही तो करने नहीं आता है. एटीट्यूड्स वाला पीपल ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो दे हैव अ वेरी गुड, दे हैव अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन. एटीट्यूड पीपल shows the attitudes towards everyone, तो उसका कोऑर्डिनेशन जो होगा बहुत कम होगा. एटीट्यूड पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस,
मैंने कहा ना एक्साइटमेंट. सम पीपल थिंक दैट द वर्क इज गिवन टू मी इज एन दे फील एक्साइटेड बिकॉज कुछ नया मिलेगा. जिसमें एटीट्यूड है उसको लगेगा कि ये बर्डन है. तो एक्सपीरियंस के तौर पे, काम करने की तौर पे, हर एक जगह पर उसको मुक्के ही खाने पड़ेंगे. दिस इज द एटीट्यूड्स इज ऑल अबाउट. एम आई क्लियर? यस सर. और कोई डाउट है? बोलो बोलो. पढ़ लेना थोड़ा सा. फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं. यू जस्ट गो रिवाइज वंस, और अगर फिर निकलता है तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल गो टू क्लियर इट. थैंक यू.